اس تلاوت کو کرنے والے ہوں گے۔ میں آپ کے سامنے زبوروں کی کتاب زبور نمبر 122 کی تلاوت کروں گا تاکہ خدا آج رات ہم سب کو خوب اپنے جلال کے لیے استعمال کرے اور آج اس عبادت پہ اپنے ہاتھ کو بڑھا کر ہمیں برکت دے۔ ہاللیلویہ، تھینک یو جیسس، ہاللیلویہ۔ زبوروں کی کتاب زبور نمبر 122 ملوت یعنی ہیکل کی زیارت کا یہ گیت ہے، اور یہ گیت داؤد نے لکھا ہے خداوند کی حمد کے لیے۔ کلام خدا میں لکھا ہے، میں خوش ہوا جب وہ مجھ سے کہنے لگے آؤ خداوند کے گھر چلیں۔ اے یروشلم، ہمارے قدم تیرے پھاٹکوں کے اندر ہیں۔ اے یروشلم، تو ایسے شہر کی مانند ہے جب وہ جان بنا ہو، جہاں قبیلے یعنی خداوند کے قبیلے اسرائیل کی شہادت کے لیے خداوند کے نام کا شکر کرنے کو جاتے ہیں، کیونکہ وہاں عدالت کے تخت ہیں، یعنی داؤد کے خاندان کے تخت قائم ہیں۔ یروشلم کی سلامتی کی دعا کرو، وہ جو تجھ سے محبت رکھتے ہیں اقبال مند ہوں گے، اور تیری فصیل کے اندر سلامتی اور تیرے محلوں میں اقبال مند ہوں گے۔ میں اپنے بھائیوں اور دوستوں کی خاطر اب کہوں گا، تجھ میں سلامتی رہے۔ خداوند اپنے خدا کے گھر کی خاطر میں تیری بھلائی کا طالب رہوں گا۔ آمین۔ یقیناً خداوند تو بھلا ہے، تیری شفقت ابدی ہے، تیرا قہر دم بھر کا ہے۔ خداوند تو چاہتا ہے کہ تیرے لوگ ہمیشہ تیری مدح سرائی کریں، تیرے نام کو عزت اور جلال دیں، تجھے قدوس کہیں۔ خداوند تیرا شکر، تیری تعریف ہو، ہاللیلویہ، تیری تمجید ہو، ہاللیلویہ۔ اور راضی کا لارا بارا ذاتا لارا مطوری، ہاللیلویہ، تھینک یو جیسس، ہاللیلویہ۔ راضی کا لارا بارا، کیونکہ خداوند کا کلام پاک کلام ہے۔ خداوند کا کلام ایسا ہے کہ وہ مردوں پر ہو تو مردے جاگ جاتے ہیں۔ خداوند کا کلام ایسا ہے کہ وہ بیماروں پہ ہو تو بیمار شفا پا جاتے ہیں۔ آئیں خداوند کے حضور اس کی شکر گزاری کریں اور اس سے کہیں کہ جہاں 2 یا 3 تیرے نام سے اکٹھا ہو جاتے ہیں، وہ خداوند کے حضور برکت کو حاصل کرتے ہیں، اور تو انہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا، تو ہمیشہ ان کے ساتھ رہتا ہے، کیونکہ اے خداوند تو مجسم ہوا ہے، اور اب تو ہمارے گناہوں کو لے کر اپنے گناہوں کے لے اپنے ساتھ دفن ہوا ہے، اور خداوند اب تیسرے دن جی اٹھا ہے۔ ہم تیرے جی اٹھنے کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں اور تجھے دن بعد کہتے ہیں ہاللیلویہ، تیری بزرگی کو بڑھاتے ہیں، ہاللیلویہ۔ آئے خداوند کی تمجید کریں، آئے خداوند سے کہیں خداوند تو ہمارے درمیان موجود ہے۔ تھینک یو جیسس، ہاللیلویہ۔ کتنا حسین وعدہ کیا خداوند نے، کتنا حسین وعدہ کیا خداوند نے، جہاں 2 یا 3 جمع ہو، میں ہوں حاضر میں، جہاں 2 یا 3 جمع ہو، میں ہوں حاضر میں۔
छोड़ूं मैं रूह अपनी भेजूं, तुझे अकेला ना छोड़ूं मैं रूह अपनी भेजूं, तुझे ना छोड़ूं
आंखों को बंद किया। हालेलुया। यकीनन हम सबका शुक्रगुजाराना वाकई ऐसा है क्योंकि उसने अपने लहू की शुक्रगुजारी हमारे लिए निकाली है। उसने अपने लहू का फिदिया मेरे और आपके लिए दे दिया है। उसने कब्र पर, मौत पर और गुनाह पर फतह पाई है। हालेलुया। उसने फतह पाकर अपने लोगों को भी फतहमंद किया है और जिंदा होकर अपने लोगों को भी जिंदा किया है। हालेलुया। जोर से कहें हालेलुया। सुहाए खुदावंद की तमजीद करेंगे, ख्वाहिश के साथ मिलकर खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल देंगे, उसकी बुजुर्गी को बढ़ाएंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। Praise God. Hallelujah. Praise God, Jesus. Hallelujah. जिंदा है यीशु जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है यीशु जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है यीशु जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है यीशु जिंदा है। वो दिखता है, वो सुनता है, वो बोलता है, यीशु जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है यीशु जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है यीशु जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है यीशु जिंदा है,
जानते हैं कि यीशु जिंदा है और आज इस वक्त हमारे दरमियान है। हालेलुया। आए जिंदा यीशु मसीह के लिए जोरदार तालियां बजाएं। प्रेज हालेलुया हालेलुया। वो जिंदा हुआ और उसने अपने लोगों को भी जिंदा रखा है। हालेलुया। सो आए इसी तरह हम खुदावंद के हुजूर और ज्यादा उसकी तमजीद करेंगे, उसे और ज्यादा अपना दरबारा कहेंगे। थैंक यू जीसस। हालेलुया। Praise hallelujah. Hallelujah, hallelujah के उठे आरज़ू समा। Hallelujah, hallelujah के उठे आरज़ू समा। Hallelujah, hallelujah के उठे आरज़ू समा। दर हकीकत कब्र में से जी उठाए गए खुदा। Hallelujah, hallelujah के उठे आरज़ू समा। Hallelujah, hallelujah के उठे आरज़ू समा। दर हकीकत कब्र में से जी उठाए गए खुदा। Hallelujah, hallelujah के उठे आरज़ू समा। Hallelujah, hallelujah के उठे आरज़ू समा। और आसमान और जमीन भी जो है हालेलुया कह रहे हैं। हालेलुया। आइए जोरदार नारा लगाएंगे ताकि हम खुदावंद की तमजीद कर सके, जोर सके हैं हालेलुया, और ज्यादा जोर सके हैं हालेलुया।
آپ کے نعرے کی آواز آنی چاہیے. زور سے کہیں ہاللویا. رب خداوند او جلالنا. ہاللویا. خداوند آپ سب کو برکت دے. آئیں اپنے سروں کو خداوند کے حضور جھکائیں گے. خداوند کے حضور خداوند کی شکر گزاری کریں گے جو وہ ہمارے لیے موا دفن کیا گیا اور آج وہ جی اٹھا. آئے اس کی شکر گزاری کریں گے. وہ اکیلا خود نہیں بلکہ بہت سی روحوں کو بھی ساتھ میں لے کر جی اٹھا ہے. ابلیس پر فتح پائی ہے, گناہ پر فتح پائی ہے, سب سے بڑھ کر موت پر فتح پائی ہے. آئے اس کی شکر گزاری کریں. شکر گزاری کریں کہ جتنی جانیں آج اس کے حضور دور اور نزدیک سے اکٹھا ہوئی ہیں. آئے ان کے لیے برکت کی دعا کریں. اور جو ابھی آ رہی ہیں رستہ میں ہیں, آئے ان کی راہوں کو خداوند کے حضور ہموار کریں. سو ہمارے درمیان پاسٹر رافیل ہیں. میں چاہوں گا کہ اس دعا میں آگے آ کے رہنمائی کریں. تھینک یو جیسس. ہاللویا. تیرا شکر, تیری تعریف. ہاللویا. خداوند تو اے خداوند رحیم ہے, تو غفور ہے. تو اپنے لوگوں کی خاطر اے خداوند صلیب کو برداشت کیا ہے اپنے لیے. اے خداوند ہم تیرا شکر کرتا ہوں. تعریف خدا تیرا شکر. آسمانی باپ ہم تیری شکرگزاری کرتے ہیں. اس موقع, اس وقت, اس گھڑی کے لیے تیری بڑی شکرگزاری کرتے ہیں. آج کے دن کے لیے خداوند جس طرح تو نے اپنے کہے کے مطابق خداوند تو جی اٹھا ہے, ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں. ایک ایک زندگی کے لیے خداوند تو خدا تو قابل مطلق خدا ہے. اور خداوند تو ہر ایک چیز کے لیے خداوند اپنے لوگوں کو خداوند پہلے برکت دیتا ہے. اور آج کے وقت کے لیے خداوند جتنی جانیں یہاں بیٹھی ہے ان سب کو چھو بڑی برکت دے. ہاللویا. خداوند اور خدا میں تیرا بندہ تجھے منت کرتا ہے جتنی جانے آج کلام کو سنے تیرے کلام کے وسیلے سے کیونکہ زندگی میں کلام جی اٹھے خداوند. اور تیرا کلام ہی خداوند ان کو زندگی کا راستہ دکھاتا ہے. اور خداوند جتنی جانے آنے کو ہے ان سب کو تیری برکت میں دیتا ہوں. ان کی آنے میں حفاظت کر اور جانے میں اسی طرح حفاظت کر. میں تیرا بندہ کو بھی تیرے ہاتھوں میں دیتا ہوں. اور ہر ایک پلان کو خداوند جو آج ان کی زندگی میں خداوند تو اب جی اٹھنے کے مطابق کرنے والا ہے. میں تیرا بندہ ایک بار پھر ان تمام لوگوں کے لیے تیری برکت کو مانگتا ہوں. ہاللویا. میری آواز کو سن قبول کر مانگتے ہیں کسی یسوع کے نام سے. ہاللویا. سو آئے خداوند کے نام کی تعظیم کریں گے, تمجید کریں گے, کیونکہ اس نے جو کام کیا ہے وہ کوئی انسان نہیں کر سکتا تھا. کوئی بیل, کوئی بچڑا ہمیں بچا نہ سکا. کسی کی قربانی ہم تک کامل نہ ٹھہری سوائے ایک کے, اور وہ ہے خدا کا بیٹا یسوع مسیح. ہاللویا. سو آئے اس یسوع مسیح کی تعریف کریں گے, اس یسوع مسیح کی تعظیم کریں گے, اس کی تمجید کریں گے پرستش کے ذریعہ سے. تھینک یو جیسس. ہاللویا. سو آئے کوائر کی بیٹیوں کے ساتھ مل کر خداوند کے نام کو عزت و جلال دیں گے. قبر پہ مسیحا کا غلبہ ہوا, وہ زندہ ہوا, وہ زندہ ہوا. قبر پہ مسیحا کا غلبہ ہوا, وہ زندہ تالیوں کے ساتھ خداوند کی تمجید کریں. یہ بیٹھے ہیں. زندہ
हालेलुया, जोर से कहें हालेलुया। उसने कब्र पर गलबा पाया है, हालेलुया। उसने मौत पे गलबा पाया है, जोर से कहें हालेलुया। मुझे लगता है आपको खुशी नहीं, आए अपनी खुशी का इजहार करें, जोरदार तालियां बजाएं। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। आए अपने कदमों पर खड़े हो जाएंगे, हम खड़े होकर खुदावंद की प्रस्तुति करेंगे, एक गीत गाएंगे, इसके बाद हम कलामी खुदा की तैयारी करेंगे। सो सब बहनों से भाइयों से गुजारिश है जो अपने कदमों पर खड़े हो सकते हैं वो खड़े हो, हम कुछ वक्त खड़े होकर खुदावंद की तमजीद करेंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस, तेरा शुक्र तेरी तारीफ। सो क्वायर के साथ मिलकर खुदावंद के नाम को धन्यवाद कहेंगे। तालियां बजाओ तो कहो कि यीशु जिंदा है। हम भी गाएंगे। तालियां बजाओ तो कहो कि यीशु जिंदा है। तालियां बजाओ तो कहो कि यीशु जिंदा है। मेरे करेगाओं में हो, मेरे करेगाओं में हो, कहो कि यीशु जिंदा है। तालियां बजाओ तो कहो कि यीशु जिंदा है। तालियां बजाओ तो कहो कि यीशु जिंदा है। तूफानों को है थमाता, जो कहता है वो हो जाता। तूफानों को है थमाता, जो कहता है वो हो जाता। तूफानी हवाओं, तूफानी हवाओं, कहो कि यीशु जिंदा है। तालियां बजाओ कहो कि यीशु जिंदा है। तालियां बजाओ तो यीशु जिंदा है, हालेलुया।
چاہیے آپ کی. ہاللویا. زور سے کہیں ہاللویا. رب خداوند او جلال دا. بولو 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 یسوع مسیح کے نام کی جے جے جے. زوردار تالیاں خداوند یسوع مسیح کے لیے. تھینک یو جیسس. تھینک یو لارڈ. اس کی جتنی بھی شکر گزاری کی جائے وہ کم ہے. ہاللویا. اس کا جتنا بھی دھنیواد کیا جائے وہ کم ہے. کیونکہ کوئی انسان کوئی قربانی ہمیں بچا نہ سکی. کوئی چھوٹا کاہن ہمیں بچا نہ سکا. لیکن ایک کاہن جو بے عیب ہے, جس کے اوپر کوئی زر نہیں ہے, جو ازلوں سے ذبح کیا ہوا بڑا ہے, یعنی خدا کا بیٹا یسوع مسیح, ہمارا رہنما, ہمارا محکم قلعہ, ہماری مضبوط چٹان. فقط اس کے کوئی بھی ہمیں بچا نہیں سکا. ہاللویا. اسی نے ہماری نجات کا انتظام کیا. اسی نے ہمیں بچایا. اس نے ہمارے دکھ, ہماری مصیبت سے, ہماری پریشانیاں, ہماری کمزوریاں سب اپنے اوپر لی ہیں اور اس نے موت پر غلبہ پایا ہے. ہاللویا. سورہ کو کلام کے حضور جلائیں گے. اب وقت ہوا چاہتا ہے کہ ہم کلام خدا کی تیاری کریں. تمام آنکھیں خداوند کے حضور مکمل بند ہو جائیں اور خداوند سے کہیں خداوند یقیناً تو نے گناہ کو اے خداوند اور شیطان کو شکست دی ہے, تاکہ اے خداوند تیرا انسان جسے تو نے خلق کیا تاکہ وہ رہائی پائے, جسے تو نے بنایا, جس نے تو نے اپنے نتنوں کا دم اس کے نتنوں میں پھونکا تاکہ وہ جیتی جان رہ سکے, ابلیس کی رہائی سے رہا رہ سکے. آئے اس کی شکر گزاری کریں. کہیں خداوند آج کا کلام میری جان کے مطابق ہو. خداوند تیرا زندہ کلام, جیسے تو زندہ ہے تیرا کلام بھی زندہ ہے. جس سے ہو جاتا ہے وہ جگ جاتا ہے, جس سے ہو جاتا ہے اس کی مردگی جاتی رہتی ہے, جس سے ہو جاتا ہے وہ نیا ہو جاتا ہے. خداوند میں آج ایسا ہی کلام اپنی زندگی سے چاہتا ہوں. تھینک یو جیسس. ہاللویا. او راضی کا لارا بارا یا کا لارا رازا بالا رامندوری. خداوند دیکھ, آج میں تیرے کلام کو اپنے دل میں بسانا چاہتا ہوں. خداوند دیکھ, آج میں تیرے کلام کے ساتھ زندہ رہنا چاہتا ہوں. خداوند تیرا کلام ہی ہے جو مجھے زندہ رکھتا ہے. تیرا کلام ہی ہے جسے دیکھ کر, سن کر, عمل میں لا کر اے خداوند میں اپنی حیات کی بھوک کو مٹا سکتا ہوں. تیرا کلام ہی ہے جو اے خداوند مجھے ہمیشہ کی زندگی دکھاتا ہے. تھینک یو جیسس. ہاللویا. تیرا شکر, تیری تعریف. ہاللویا. تیرا کلام زمانے میں اے خدا بندہ. سو یہ سب مل کر کہیں, اس لیے کہ وہ زندہ ہے اور آج اپنے کلام کے ذریعہ سے آپ کو بھی نئی زندگی دے گا. ہاللویا. تیرا کلام زمانے میں اے خدا بندہ. سب کہیں تیرا
anointing, तेरे फरिश्ते और तेरे करूबियों ने ऐ खुदावंद इस पंडाल को घेरा है। यकीनन खुदावंद तू अब आन पहुंचा है ताकि ऐ खुदावंद हर एक जान से ऐ खुदावंद अपने कलाम के मुआफिक इनकी जिंदगियों में कलाम को निछावर करे। वही कलाम ऐ खुदावंद जिसके होने से अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं और मुर्दे कब्रों से बाहर आ जाते हैं। खुदावंद मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ क्योंकि अब ये तेरा कलाम हमारे साथ होने को है। आज फिर वो कलाम जो अब तक यकसा रहा है आज फिर हमारे दरमियान है। खुदावंद मैं तेरा शुक्र और तेरी तारीफ तमजीद करता हूँ। खुदावंद हमारे कान तेरे कलाम की तरफ झुक गए हैं, हमारा दिल तेरी तरफ राग़िब हुआ है ताकि तेरे कलाम को मन में बसा सके। थैंक यू जीसस। स्वयं खुदा के खादिम के लिए, खुदा के मंसूब के लिए खुदावंद के हुज़ूर दुआ करेंगे ताकि आज इस नाइट का पैगाम हमारी जिंदगी की बहाली के लिए हो। इस नाइट का पैगाम आज हमारी कुव्वत के लिए हो। इस नाइट का पैगाम आज हमारी कमियां कमजोरियां हम पर जाहिर करे ताकि खुदा की दलेरी कुव्वत उसकी बंदगी हमारी जिंदगी में हो। हालेलुया। स्वयं खुदा के खादिम के लिए दुआ करेंगे कि आज खुदा अपने बंदा को शोला की मामले में इस्तेमाल करे। आज अपने बंदा को इलाही मुकाशफात भेद दे ताकि आज उसका बंदा खूब उसके लोगों को सैर और सूदा कर सके। क्योंकि खुदावंद तेरा कलाम ही है जो मन की प्यास को बुझाता है, जो हयात की प्यास को बुझाता है। हम तेरे कलाम की शुक्रगुजारी करते हैं। और राजी का लारा बारा रियारा बाराजी का लारा मातो। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। स्वयं इस दुआ में हमारे साथ रहनुमाई भाई प्रवेश करेंगे। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो सामने आकर खुदा के खादिम के लिए दुआ करें। बाकी सब इसी तरह झुके रहें और इस दुआया माहौल में अपने लिए खुदावंद के हुजूर दुआ करें कि खुदा आज अपने कलाम से आपको नया करे। हालेलुया। पुरानी चीजें जाती रही और नई चीजें आ जाए। खुदा आज आपके दिलों को गोश्त दिल बनाए। हालेलुया। आए दुआ करें। थैंक यू जीसस। खुदाए कदूस रब्बुल अफ़ाज़ ज़मीन और आसमान के खालिक, तेरा शुक्र अदा करते हैं इन पैरों लम्हात के लिए। तू जो भला है, तेरी शफ़क़त अब्दी, तेरा प्यार निराला है, तेरी वफादारी पुश्त दर पुश्त है। इस पुश्त के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। तेरी तारीफ, तेरी हम मसीह यीशु में तुझे जलाल देते हैं। तू जो रहीम और करीम है, इस सारे माहौल को तेरे मुकद्दस लहू में, तेरे पाक पवित्र लहू में, हर एक जिंदगी जान बदल रूह को तेरे लहू में छुपा देते हैं। इस पंडाल को, इस जगह को, इस उम्मीद के साथ, इस ईमान के साथ कराबानी इबी अंकी मुलकलस तू यहाँ मौजूद है। तेरी कुदरत अदराक से बाहर है, चूँकि तू हम सब की जानों का लंगर है, हमारा ज़ामिन है और हमारा चौपान है जो हमेशा आगे आगे चलता है। तेरे कलाम के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं चूँकि तेरा कलाम पवित्र है, पाक है, चूँकि वो भट्ठी में 7 बार ताया गया हुआ कलाम है। तूने उसे ताया ताकि खुदाए कदूस उसे मुकद्दस करे, पाक करे। तेरे खादम को तेरे लहू में इस उम्मीद के साथ, क्योंकि तू हमारी जिंदा उम्मीद है, हमेशा हमारे साथ है। हाँ खुदावन खुदा, तेरा शुक्र अदा करते हैं और तेरे खादम के लिए बरकत चाहते हैं। जब तक बोले तेरा मसा, हाँ खुदावन खुदा तेरा रूह उसमें, हाँ खुदावन खुदा कसरत के साथ काम करे और सुनने वालों पर बायस से बरकत ठहरे। सारे माहौल को बारहा तेरे हाथ में तेरे सुपुर्द करते हैं। हमेशा सब कुछ तेरे ही सुपुर्द है। कलीसिया के लिए, घराने के लिए, अपनी बीवी बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए, हाँ खुदावन बुजुर्गों के लिए ये कलाम बायस से बरकत ठहरे ताकि तेरा नाम जलाल पाए और कलीसिया में तेरी बढ़ोतरी हो। बनी इस्राएल की सलामती चाहते हैं। बाकी मादा वक्त में तेरी रहनुमाई यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आमीन। हालेलुया। जोर से कहें हालेलुया।
आए इस हजूरी के लिए जोरदार तालियां बजाएं। जो खुदावन की हजूरी हमारे दरमियान है, उसकी अनॉइंटिंग में हमें दे रहा है। सो सबसे गुजारिश है कि अपनी जगहों पर तशरीफ रखें। का जिंदा कलाम इस वक्त हमारे दरमियान है। अब से कुछ देर में खुदा आपके साथ कलाम करने को है। सो मेरे अजीजों, आज आपने इस बात को देखना है कि खुदा आज आपसे क्या कलाम करता है। यकीनन आज का कलाम जो भी होगा यहाँ हर एक बैठी जान के लिए बरकत का बाइस ठहरेगा। हालेलुया। इससे बेशतर कि मैं खुदा के खादिम को दावत दूं, खुदा की बंदी लुबना शमशाद खुदा के खादिम के लिए हार लेकर आई हैं। मैं उन्हें दावत दूंगा कि वो आए और ये हार खुदा के खादिम को बनाए। आपकी जोरदार तालियों में भाई यूसुफ से गुजारिश है कि इनकी हेल्प करें जरा। कलाम में लिखा है कि खुदा के खादिम दो जन इज्जत के लायक हैं। हालेलुया। अगर हम इस ज़मीन पर इस बात को समझेंगे तो खुदा हमारी ज़िंदगियों में ढेरों बरकत को डालेगा। थैंक यू जीसस। मैं अपने खुदा का नहायत ही शुक्रगुजार हूँ कि खुदा ने इस बंदी के दिल में इस बात को रखा और इस काम को वो करने के लिए आई हैं। जोरदार तालियों में एक हार वो खुदा के खादिम डीकन यूसुफ गौरी के लिए लेके आई है। इनकी सारी खिदमत को देखते हुए, इनकी बाप दौड़ को देखते हुए सारे चर्च का निज़ाम इन्होंने अकेले संभाला होता है। खुदावंद इनको बरकत दे। इनकी खिदमत को देखते हुए ये हार इनको पहनाया गया है। एक हार ये मेरे लिए लाई है। मैं चाहूँगा कि मेरी बेटी अलीना अगर यहाँ आ जाए तो मैं बहुत खुश होऊंगा। मैं बेटी से गुजारिश करता हूँ कि जल्दी से सामने आए ताकि अपने पापा को हार बना सके। ये तो वैसे घर की बात थी, घर में रह जाती, लेकिन इनका इसरार था तो मैंने कहा चलें ठीक है, जैसे आप लोग कहते हैं। आपकी जोरदार तालियों में अप्लाई के लिए का शुक्र करते हैं। जोरदार तालियां इस बात के लिए। वैसे तो इस चर्च में सभी जी दौड़ मेहनत करते हैं। पिछले साल इन्होंने मुझसे जिक्र किया था, लेकिन किसी वजूहात की बिना पर ये इस कार्य को नहीं कर सकी। आज इन्होंने जिक्र किया तो मैंने कहा जरूर इस काम को जल्द करें। फिर मैंने इनसे पूछा कि ये मदद है कि आपके दिल में इस बात को खुदा ने डाला है। इन्होंने कहा मदद नहीं है कि बात मेरे दिल में है। मैंने कहा फिर इसे आज हम जरूर करेंगे। हालेलुया। वक्त हुआ जाता है कि खुदा हमसे कलाम करे। मैं खुदा के खादिम को आपकी जोरदार तालियों में दावत देता हूँ कि वो आए और खुदा की जिंदगी बख्श कलाम को हम सबके साथ शेयर करें। आमीन। खुदावंद यीशु मसीह के पाक जलाली और फतहमंद नाम में आप सबकी सलामती हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरी तरफ से, चर्च इंतजामिया की तरफ से
मेरे डीकन्स, मेरे मुबश्शिर, मुबश्शिराएं, डिकनस, क्वायर और तमाम कलीसियाई मेंबरान की तरफ से आपको बहुत बहुत ईस्टर की ढेरों खुशियां मुबारक हो। आमीन, हालेलुया। आए यीशु मसीह के लिए जोरदार तालियां बजाएं, जो मेरे और आपके लिए मरकर जिंदा हुआ, जिसने हमारी मुर्दा उम्मीदों को जगाया, जिसने हमारी मुर्दा जिंदगियों को जगाया, ताकि हम मुर्दा न रहें बल्कि हम जिंदा हो जाएं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह का जी उठना हमारे लिए एक बहुत बड़ी उम्मीद है। ईमानदारों के लिए एक बहुत बड़ी उम्मीद है। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। आमीन, हालेलुया। यूं तो बहुत से मुर्दे यीशु मसीह ने जिंदा किए नए अहदनामा में, और पुराने अहदनामा में भी बहुत से मुर्दे जिंदा हुए, लेकिन जिस तरह यीशु मसीह जिंदा हुआ है, इस तरह कोई भी दुनिया में मुर्दा जिंदा नहीं हुआ। हालेलुया। इस तरह कोई भी मुर्दा जिंदा नहीं हुआ कि इंसान कहे कि मैं तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठूंगा। ऐसा कोई शख्स दुनिया में है? ऐसा किसी ने दावा किया कि अगर तुम इस मकदिस को ढा दो तो मैं इसे तीसरे रोज फिर उठा खड़ा करूंगा। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से भी कहा कि जरूर है कि इब्ने आदम गैरों के हवाला किया जाए और वो उसे मसलूब करें और इब्ने आदम तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठे। हालेलुया। ये दावे, ये वादे, ये कलाम, ये इख्तियार, ये कुव्वत, ये जोर, ये कुदरत सिर्फ और सिर्फ मेरे और आपके यीशु मसीह में है। हालेलुया। जोरदार तालियां बजाएं यीशु मसीह के लिए। आए मेरे साथ कलामे मुकद्दस में से एक हवाला देखेंगे। पहला कुरिन्थियों उसका 5वां बाब, 15वां बाब और उसकी 3री आयत। पहला कुरिन्थियों पहला कुरिन्थियों 15वां बाब और उसकी 3री आयत से कलामे मुकद्दस में से पढ़ने लगा हूं। सो बराए मेहरबानी, जब कलाम खुलता है तो खुदा बोलता है। हमने बड़ी संजीदगी के साथ जिस मकसद के लिए हम आए हैं उसे आज हमने पूरा करना है, उसे आज हमने हासिल करना है, ताकि खुदा के कलाम को हम समझ सकें, खुदा के कलाम से हम बरकत पा सकें और खुदा का कलाम हमारी जिंदगियों में काम करे। आमीन। पहला कुरिन्थियों 15वां बाब और उसकी 3री आयत में लिखा है, चुनाचा मैंने सबसे पहले तुमको वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी। पौलुस रसूल क्या कहता है कुरिन्थस की कलीसिया को? वो कहता है वो बात जो मुझे पहुंची मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि मसीह किताबे मुकद्दस के मुताबिक
हमारे गुनाहों के लिए मुआ। मसीह किसके मुताबिक? किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मुआ और दफन हुआ और तीसरे दिन किताब मुकद्दस के मुताबिक जी उठा। हालेलुया। यीशु के लिए जोरदार तालियां बजाएं। जो किताब मुकद्दस के मुताबिक, कलाम मुकद्दस के मुताबिक, बाइबल मुकद्दस के मुताबिक, शरीयत के मुताबिक वो जी उठा है। हालेलुया। और पौलुस रसूल पर ये खुदा के रूह ने बात जाहिर की। बेशक पौलुस ने उस वक्त के रसूलों से भी सुना होगा, क्योंकि वो यीशु मसीह के जी उठने के शाहिद थे। उन्होंने शहादत दी। वो यीशु मसीह के ऐनी गवाह थे, ऐनी शाहिद थे। उन्होंने यीशु मसीह को मरते हुए और फिर मुर्दों में से जी उठते हुए देखा था। सो पौलुस रसूल भी बताता है, तीसरे दिन किताब मुकद्दस के मुताबिक जी उठा और कैफा को दिखाई दिया। कैफा कौन है जी? कैफा जो है वो पतरस है। पतरस जो है उसको सबसे पहले यीशु मसीह दिखाई दिया। और फिर लिखा है 500 से ज्यादा भाइयों को दिखाई दिया, जिनमें से अक्सर अब तक मौजूद हैं और बाद सो गए। फिर याकूब को दिखाई दिया, फिर सब रसूलों को, और सबसे पीछे मुझको जो गोया अधूरे दिनों की पैदाइश हूं दिखाई दिया। क्योंकि मैं रसूलों में सबसे छोटा हूं, बल्कि रसूल कहलाने के लायक नहीं, इसलिए कि मैंने खुदा की कलीसिया को सताया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पौलुस रसूल बताता है कि यीशु मसीह को जिंदा मुर्दों में से जी उठने के बाद मैंने भी देखा है। वो अपनी भी शहादत है कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने जितने भी दावे किए वो आज मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। यीशु मसीह ने अपने जो जी उठने के दावे किए, नंबर 1, यीशु ने कहा, क्योंकि जैसे यूना मछली के पेट में 3 दिन और 3 रात रहा, वैसे ही इब्ने आदम 3 दिन और 3 रात जमीन के अंदर रहेगा और फिर क्या होगा? जी उठेगा। नंबर 2, उस वक्त यीशु ने अपने शागिर्दों पर जाहिर करने लगा कि उसे जरूर है कि यरूशलेम को जाए और बुजुर्गों और सरदार काहिनों और फकीरों की तरफ से बहुत दुख उठाए और कत्ल किया जाए और तीसरे दिन जी उठे। मत्ती की अंजील 16वां बाब और उसकी 21वीं आयत में यह लिखा है। और जो मैंने यूना का हवाला पढ़ा है, मत्ती की अंजील 12वां बाब और उसकी 40वीं आयत में लिखा है। नंबर 3, जब वो पहाड़ से उतर रहे थे तो यीशु ने उन्हें यह हुक्म दिया कि जब तक इब्ने आदम मुर्दों में से ना जी उठे, जो कुछ तुमने देखा है किसी से उसका जिक्र ना करना।
जब पहाड़ पर यीशु मसीह की सूरत बदल गई, उस वक्त यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को कहा कि जो कुछ तुमने देखा है उस वक्त तक किसी से ना कहना, जब तक इब्ने आदम जो है मुर्दों में से जी ना उठे। ये यीशु मसीह ने अपने जीते जी सारे दावे किए हैं। नंबर 4, और जब वो गलील में ठहरे हुए थे, यीशु ने उनसे कहा, इब्ने आदम आदमियों के हवाला किया जाएगा और वो उसे कत्ल करेंगे और वो तीसरे दिन जिंदा किया जाएगा। मत्ती 17 उसकी 22 आयत। नंबर 5, यीशु ने जवाब में उनसे कहा, अगर इस मकदिस को ढा दो तो मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। यूहन्ना 2 बाब और उसकी 19वीं आयत। सो यीशु मसीह ने मरकर जी उठने के जो हैं वो दावे किए हैं। दुनिया में कोई ऐसा शख्स नहीं, आदम से लेकर यीशु मसीह तक मौत जो है आदमियों पर राज करती रही। मौत जो है वो आदमियों को लुकमा बनाती रही, लेकिन यीशु मसीह वाहिद वो हस्ती है, यीशु मसीह वाहिद वो खुदा का बेटा है जिसने कब्र और मौत पर फतह पाई। और उसने कहा, ऐ मौत तेरी फतह कहां रही, ऐ मौत तेरा डंक कहां रहा, ऐ कब्र तेरी फतह कहां रही। मौत फतह का लुकमा हो गई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये सिर्फ और सिर्फ दावे जो हैं यीशु मसीह ने किए। दुनिया में कोई भी ये दावा नहीं कर सका कि अपने जीते जी वो मरने और फिर जी उठने का दावा करे। फर्क मेरा और आपका यीशु है जो किताबे मुकद्दस के मुताबिक मुआ, दफन हुआ और तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठा। आए रोमियो का खत देखें। रोमियो का खत निकाले मेरे साथ, ग्रंथियों के पीछे है। रोमियो उसका पहला भाग रोमियो उसका पहला बाब और उसकी 2 से 4 आयत लिखा है, जिसका उसने पेशतर से, पेशतर किसको कहते हैं? पेशतर कहते हैं पहले से, बिफोर, होने से पहले। पौलुस रसूल बताते हैं, जिसका उसने पेशतर से अपने नबियों की मार्फत किताबे मुकद्दस में अपने बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की निस्बत वादा किया था। किसने वादा किया? खुदा ने वादा किया। अपने बेटे के हक में, अपने बेटे के लिए वादा किया। लिखा है, जिसका उसने पेशतर से अपने नबियों की मार्फत किताबे मुकद्दस में अपने बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की निस्बत वादा किया था, जो जिस्म के एतबार से तो दाऊद की नस्ल से पैदा हुआ, लेकिन पाकीज़गी की रूह के एतबार से मुर्दों में से जी उठने के सबब से कुदरत के साथ खुदा का बेटा ठहरा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ऐसे ही खुदा का बेटा नहीं बना। यीशु मसीह कुदरत के साथ मुर्दों में से जी उठकर पाकीज़गी के एतबार से वो खुदा का बेटा ठहरा है। उस वक्त अब ईद फसह मना रहे
خدا کا برہ جو ہے، فسح کا برہ جو ہے وہ قربان ہو رہا تھا، اور اس کی قربانی سے آسمان تاریک ہو گیا، قبریں کھل گئی، زمین لرز اٹھی، چٹانیں تڑک گئی، پہاڑ ہل گئے، اور کلام میں لکھا ہے ہیکل کا پردہ جو ہے وہ بیچ میں سے پھٹ کر 2 حصے ہو گیا۔ اور جب صوبیدار نے یہ ماجرا دیکھا تو اس نے کہا یقیناً یہ شخص خدا تعالیٰ کا کیا ہے جی، بیٹا ہے، حالانکہ وہ غیر قوم سے ہے، وہ غیر یہودی ہے، وہ یسوع مسیح پر ایمان لے آیا کہ یہ کون ہے جی، خدا کا بیٹا ہے، جس کی اتنی قدرت ہے، جس کے غم میں آسمان رو رہا ہے، زمین کانپ رہی ہے، چٹانیں تڑک رہی ہیں، پہاڑ ہل رہے ہیں، ہیکل میں ہلچل مچ چکی ہے۔ اس نے کہا واقعی یہ خدا تعالیٰ کا کیا ہے جی، بیٹا ہے۔ اور پالوس رسول بھی رومیوں کے خط میں کہتا ہے لیکن پاکیزگی کی روح کے اعتبار سے مردوں میں سے جی اٹھنے کے سبب سے قدرت کے ساتھ خدا کا بیٹا ٹھہرا۔ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے۔ آئے رومیوں اس کا 6 باب اور اس کی 9 آیت دیکھتے ہیں۔ رومیوں 6 باب اور اس کی 9 آیت سے لکھا ہے کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ مسیح جب مردوں میں سے جی اٹھا ہے تو پھر نہیں مرنے کا، موت کا پھر اس پر اختیار نہیں ہونے کا۔ ہاللیلویا! یسوع کے لیے زوردار تالیاں بجائے جو مردوں میں سے جی اٹھا ہے، جو میرے اور آپ کے گناہوں کے لیے موا، میری اور آپ کی خطاؤں کے لیے موا، میرے اور آپ کے واسطے وہ موا، اور پھر تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ پالوس رسول کہتا ہے رومیوں کے خط میں 6 باب کی 9 آیت میں، کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ مسیح جب مردوں میں سے جی اٹھا ہے تو پھر نہیں مرنے کا، موت کا پھر اس پر اختیار نہیں ہونے کا، کیونکہ مسیح جو ہوا گناہ کے اعتبار سے ایک بار ہوا۔ تو گناہ کس کے تھے؟ ہاں جی، گناہ کس کے تھے؟ میرے اور آپ کے گناہ نے مسیح کو مارا، مسیح کو صلیب چڑھایا گیا، مسیح کی جان جو ہے لی گئی، میرے اور آپ کے گناہوں نے اس کی جان لی۔ لکھا ہے گناہ کے اعتبار سے ایک بار ہوا، مگر اب جو جیتا ہے تو خدا کے اعتبار سے جیتا ہے۔ اسی طرح تم بھی اپنے گناہوں کے اعتبار سے مردہ، مگر خدا کے اعتبار سے مسیح یسوع میں اپنے آپ کو زندہ سمجھو۔ ہاللیلویا! اگر ہم مسیح یسوع میں ہیں تو ہم زندہ ہیں، ہم زندہ ہیں، ہم زندہ کیے جا چکے ہیں، اس کے ساتھ ہم جلائے گئے ہیں۔ پالوس رسول کہتا ہے میں مسیح کے ساتھ ہوا، میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا ہوں، اور اس کے جی اٹھنے کے سبب سے میں بھی مردوں میں سے کیا ہو چکا ہوں؟ جی اٹھا ہوں۔ ہاللیلویا! 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 سو ہمیں بھی زندہ ہونا ہے گناہوں کے اعتبار سے، گناہوں میں مر کر خدا کے اعتبار سے ہم نے زندہ ہونا ہے۔ یسوع مسیح اپنے وعدے اور کتاب مقدس کے مطابق جب زندہ ہوا، آپ کو پتا ہے
रोमी गवर्नमेंट, रोमी सिपाही, फकीर, फरीसी, शरअ के आलम और हैकल के काहिन जो हैं, उन्होंने पिलातूस के पास आकर दरखास्त की, और ये उनका बड़ा सबत का दिन था, ये बड़ा मौसम था। उस दिन वो किसी से दरखास्त नहीं करते थे, लेकिन क्योंकि उनके अंदर हसद था, उनके अंदर यीशु के लिए नफरत थी, उन्होंने सबत की भी परवाह नहीं की और वो पिलातूस के पास सफर करके गए और उससे दरखास्त की कि पिलातूस, क्योंकि पिलातूस उस वक्त का बादशाह था, उसको कहा कि तू ऐसा कर कि यीशु मसीह की कब्र पर मोहरें लगवा, उसकी कब्र पर पहरेदार बिठा। हमें ये यकीन है कि उसके शागिर्द आएंगे और उसकी लाश चुरा ले जाएंगे और कह देंगे कि यीशु मसीह मुर्दों में से क्या हो चुका है, जी उठा है। तू ऐसा कर, तू हम पर मेहरबानी कर कि उसकी कब्र पर पहरेदार बिठा, सरकारी पहरेदार बिठा और अपनी सरकारी मोहर जो है उसकी कब्र पर लगा दे। ये हम तुझसे दरखास्त करते हैं। और पिलातूस तो पहले ही यीशु मसीह को छोड़ना चाहता था। पिलातूस जानता था कि यीशु मसीह बेगुनाह है, ये बेगुनाह पर जुल्म कर रहे हैं। यीशु मसीह ने, पिलातूस ने यीशु मसीह को बारहा बचाने की कोशिश की, और जब ये आए कहने के लिए कि तू मोहरें लगा, पहरेदार बिठा, उसने कहा तुम यहां से चले जाओ और तुम्हें पहरेदार दिए हुए हैं जो हैकल में पहरादारी करते हैं, उनको जाकर बिठाओ। और फिर जाकर उन्होंने पहरेदार बिठाए और सरकारी मोहर जो है यीशु मसीह की कब्र पर लगाई गई और कड़ी निगरानी जो है यीशु मसीह की लाश की होने लगी। आमीन। लेकिन जब वक्त आ गया यीशु मसीह के जी उठने का, किताबे मुकद्दस के मुताबिक, यीशु मसीह के वादों, यीशु मसीह के कलमे के मुताबिक, कलाम के मुताबिक जब वक्त आ गया तो कलाम में लिखा है आसमान से एक फरिश्ता आया। आमीन, हालेलुया। बच्चों पर कंट्रोल करें मेहरबानी करके। कलाम में लिखा है आसमान से फरिश्ता आया और फरिश्ते की तजल्ली, फरिश्ते की रोशनी, फरिश्ते का जलाल देखकर निगहबान मुर्दा हो गए और फरिश्ते ने वो सारी मोहरें तोड़ दी जो कब्र पर लगाई गई थी और पत्थर को वहां से लुढ़का दिया। आमीन, हालेलुया। जोरदार तालियां बजाएं यीशु मसीह के वादों के लिए, किताबे मुकद्दस के लिए, यीशु मसीह की कुदरत के लिए जो इतने पहरों में भी जी उठा है। हालेलुया, हालेलुया। कलाम में लिखा है फरिश्ते ने क्या किया पत्थर को। फरिश्ते के लिए कोई मुश्किल है पत्थर हटाना? एक फरिश्ते की कुवत मैं आपको बताना चाहता हूं कि कितनी है। एक फरिश्ता इस कदर कुवत वाला है कि आपकी ये जमीन जो है कितनी बड़ी है, इसको चारों फरिश्तों ने उठाया हुआ है। कितने फरिश्तों ने? चारों फरिश्ते इस जमीन के चारों कोनों पर हैं और वो मुकर्रर हैं, उन्होंने इस जमीन को संभाला हुआ है। आमीन, हालेलुया। और एक फरिश्ता 1 मिनट में पूरी दुनिया का 3 बार चक्कर लगा सकता है। हालेलुया। एक फरिश्ते की कुवत, एक फरिश्ते की कुदरत जो है, खुदा ने जो उन्हें कुवत दे रखी है,
1 मिनट में पूरी दुनिया का वो 3 बार चक्कर लगा सकता है। इस कदर वो कुवत वाले हैं, इस कदर वो जोरावर हैं। सो खुदा ने अपने बेटे के लिए फरिश्ता भेजा और फरिश्ते ने कब्र का मुंह भी खोल दिया, और फिर निगहबान जो बड़े पहरे दे रहे थे, नेज़े लेकर, तलवारें लेकर, बर्छियां लेकर, कि कब्र के करीब कोई ना आने पाए। कलाम में लिखा है फरिश्ते को देखकर वो मुर्दा से हो गए। हालेलुया। और यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, और अपने जी उठने के बाद 12 मुकामात पर यीशु मसीह लोगों को जिंदा नजर आए। हालेलुया। कितने मुकामात पर? कोई इत्तफाक नहीं है कि किसी ने इत्तफाकिया देख लिया, किसी ने ख्वाब में देख लिया, किसी ने रोया में देख लिया, बल्कि सबने अपनी दीदनी आंखों से अपने पूरे होशो हवास के साथ यीशु मसीह को जिंदा देखा। आइए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले मरियम मगदलीनी, मरकज 16 बाब और उसकी 9 आए। नंबर 2, कब्र पर आने वाली खवातीन पर मत्ती की इंजील 28वें बाब की 9 आए। अमाउस की राह पर चलने वाले 2 शागिर्दों पर मुकद्दस लूका 24 की 4 आए। नंबर 4, पतरस पर लूका की इंजील 24वां बाब 34वीं आए। 10 शागिर्दों पर लूका की इंजील 24वां बाब 4 आए। नंबर 6, 11 शागिर्दों पर यूहन्ना की इंजील 20 बाब उसकी 26वीं आए। नंबर 7 शागिर्दों पर यूहन्ना की इंजील 21वां बाब और उसकी 1 से 22 आए। गलील के पहाड़ पर 11 शागिर्दों को यीशु मसीह जिंदा नजर आए। मत्ती की इंजील 28वें बाब की 16वीं आए। नंबर 9, मत्तिया समेत 12 शागिर्दों पर यीशु मसीह जाहिर हुए, जिंदा जाहिर हुए। पहला कुरिन्थियों 15वें बाब की 5वीं आए। नंबर 10, 500 से ज्यादा भाइयों को दिखाई दिए। पहला कुरिन्थियों 15वां बाब और उसकी 17वीं आए। नंबर 11, यीशु के भाई याकूब को यीशु मसीह जिंदा नजर आया। पहला कुरिन्थियों 5वां बाब और उसकी 7वीं आए। नंबर 12, फिर सब रसूलों पर पहला कुरिन्थियों 15वां बाब और उसकी 7वीं आए। और फिर सबसे आखिर में पालूस रसूल को यीशु मसीह जो है वो जिंदा नजर आए। हालेलुया। जोरदार तालियां बजाएं यीशु मसीह के जिंदा होने के लिए और मुर्दों में से जी उठने के लिए। आए एक हवाला और देखते हैं, इसके बाद मेरी कोशिश होगी कि मैं बंद करूं। यूहन्ना आरिफ का मुकाशफा निकालें, उसका पहला बाब और उसकी 17वीं आए। यूहन्ना आरिफ कहता है, जब मैंने उसे देखा तो उसके पांव में मुर्दा सा गिर पड़ा। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह को कोई देख नहीं सकता, उसकी ताप कोई नहीं ला सकता, उसकी तजल्ली को कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। और जब यूहन्ना आरिफ ने यीशु मसीह को देखा तो कलाम में लिखा है,
जब मैंने उसे देखा तो उसके पांव में मुर्दा सा गिर पड़ा और उसने ये कहकर मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखा कि खौफ ना कर, मैं अव्वल और आखिर और जिंदा हूं। मैं मर गया था और देख अब्दुल आबाद जिंदा रहूंगा। मौत और आलमे अरवा की कुंजियां मेरे पास हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मौत और आलमे अरवा की कुंजियां यीशु से पहले किसके पास थी जी? हाँ जी, जो नबियों को भी आलमे अरवा में ताले में बंद कर देता था, जो अंबिया को, रसूलों को और बड़े बड़े खुदा के लोगों को वो क्या कर देता था? उनकी रूहें वो कब्ज कर लेता था, उन्हें कैद कर लेता था, लेकिन यीशु मसीह की रूह को कैद नहीं कर सका, बल्कि यीशु मसीह ने उसकी रूह को कैद कर दिया, उसे महदूद कर दिया, उसके इख्तियार को महदूद कर दिया, उसकी कुदरत को महदूद कर दिया और उसे अदमुआ कर दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने शैतान पर फतह पाई, मौत पर फतह पाई, कब्र पर फतह पाई, आलमे अरवा पर फतह पाई। और ये सिर्फ फतह यीशु की नहीं है, ये जो फतह है सिर्फ यीशु की नहीं है। यीशु ने अपने लिए फतह नहीं पाई, यीशु अपने लिए मुर्दों में से नहीं जी उठा, यीशु मसीह ने अपने लिए शैतान को नहीं हराया, यीशु मसीह ने उसकी कुदरत को अपने लिए खत्म नहीं किया, बल्कि मेरे और आपके लिए। जोरदार तालियां बजाएं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की फतह, आपकी फतह, यीशु का जी उठना, आपका जी उठना, यीशु की कुदरत, आपकी कुदरत, यीशु का इख्तियार, आपका इख्तियार है। यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को इख्तियार दिया, जाओ सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और इब्लीस की सारी कुदरत पर गालिब आओ, तुम्हें कुछ जरर ना पहुंचेगा। हालेलुया, हालेलुया। हाँ जी, अभी कुछ गुंजाइश रह गई है, कुछ समझना बाकी है तो मेरे पास है, अभी आगे भी आपको बता सकता हूं कि यीशु मसीह की कुदरत क्या है। आए खुदावंद इस कलाम के वसीला से मुझे और आप सबको बरकत दे और यीशु मसीह के जी उठने की कुदरत को बयान करने का और उस पर अमल करने का फजल दे। आमीन। जोरदार तालियां इस नफीस कलाम के लिए, जिंदा दिल कलाम के लिए और जिंदा करने वाले कलाम के लिए। सो आए अपने सर को खुदा के हुजूर झुकाएंगे। हमारे दरमियान बेटी सोनिया है, सो मैं इनसे गुजारिश करता हूं कि वो आए और इस कलाम खुदा की शुक्रगुजारी करें। सोनिया राफिल, बाकी सर खुदावंद के हुजूर यूं ही झुके रहें, अपनी आंखों को बंद करें और दुआ करें कि खुदावंद यकीनन आज तेरा कलाम पुरजोर कलाम था और तेरे कलाम ने मुझे जिंदा रखा है। मैं तेरे कलाम की शुक्रगुजारी करता हूँ। कदूस 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 खुदाए कादिर रब्बियत के बाप सलामती के शहजादे, तू जो था, तू जो है, तू जो आने वाला है। खुदावंद हो के खुदावंद हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज के इस लगे तख्त के लिए। खुदावंद तू हमारे दरमियान मौजूद है। खुदावंद मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ कि खुदावंद तुझे मुर्दों में से जिंदा किया गया। खुदावंद तू मुर्दों में से जिंदा हो चुका है। खुदावंद हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं बाबा आसमानी। खुदावंद हम कि तूने हमें अपनी खुशियों में शामिल होने का मौका बख्शा। बाबा आसमानी मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ।
खुदावन यहाँ जितने मौजूद है एक एक को छू नाम ब नाम बरकत दे और तेरे हसीन कलाम के लिए जो तेरे खादिम ने हम तक पहुँचाया हमारे लिए बाइस से बरकत ठहरे। खुदावन तेरा शुक्र करती हूँ। खुदावन ये कलाम हमारी जिंदगियों के लिए बाइस से बरकत ठहरे और बहुत सा फल लाए। बाबा आसमानी मेरी इस दुआ को सुन और कबूल कर। मांगती और पा लेती हूँ तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया, जोर से कहें हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद आपको बरकत दे। सो वक्त हुआ जाता है कि हम खुदावंद की हुजूर प्रस्तुत करें। इसी के दौरान अपने हदिये नजराने खुशी के साथ खुदावंद के हुजूर गुजराने के। सो खुशी से देने वाले को मेरा और आपका खुदावंद अजीज रखता है। सो हदिये की टीम को मैं अलर्ट करना चाहता हूँ। स्क्वायर के साथ मिलकर खुदावंद की तमजीद करेंगे और इसी के दौरान हम हदिये गुजराएंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। Hallelujah. मौत को मार कर आपने दम लिया, मिलके सब ये कहो मरहबा 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 मिलके सब ये कहो मरहबा जिंदा हुआ आखिरी में खुदा मिलके सब ये कहो मरहबा मरहबा मौत को मार कर आपने दम लिया, मिलके सब ये कहो जोर से कहें हालेलुया। यकीनन खुदावंद यीशु मसीह ने मौत पर गलबा पाया है, मौत पे फतह पाई है और हम सबको भी फतहमंद किया है। सो आए सब सर खुदावंद के हुजूर एक मरतबा फिर से जुड़ जाए। इस हदिये के लिए नजराने के लिए खुदावंद के हुजूर शुक्रगुजारी करें। सो हमारे दरमियान डिग्रस रजिया यूसुफ है, मैं चाहूँगा कि वो सामने आए और इस हदिये और नजराने के लिए खुदावंद के हुजूर दुआ करें। बाकी सब खुदावंद के हुजूर यूं ही झुके रहें और आज के दिन के लिए, ईस्टर नाइट के लिए, खुदावंद की तमजीद करने के लिए, उसके कलाम को सुनने के लिए आए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। थैंक यू जीसस, हालेलुया। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आए सब अपने सिरों को
खुदावन की पाक हज़ूरी में अपनी आंखों को बंद करते हुए हालेलुया मसीह यीशु में हमारे जिंदा जलाली आसमानी बाप, हम दिल से तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरे नाम को जलाल देते हैं, तुझे ऊंचा और तुझे मुबारक कहते हैं, क्योंकि तू बादशाहों का बादशाह, तू खुदावंदों का खुदा, तू लश्करों का खुदा, आप हमारे दरमियान हैं। हम आपका शुक्र अदा करते हैं। हम खुदावन खुदा आपकी हजूरी के लिए, मसा के लिए, बरकत के लिए हम दिल की गहराइयों से खुदावन खुदा शुक्र गुजारी करते हैं। अब खुदावन खुदा इस हदिये नजराने के लिए तेरे हजूर दुआ करते हैं। खुदावन खुदा जो लोगों ने, जो जिंदगियों ने तेरी तरफ अपने हाथ को बढ़ाया और बंद मुट्ठियों को तेरे हजूर खोला है खुदावन खुदा, दे खुदावन खुदा जो कुछ भी हमारे पास है हम तेरे पास लाए हैं खुदावन खुदा, तेरे हजूर लाए हैं खुदावन खुदा, कि तू हमारे घरानों पर अपनी बरकत को उंडेल है खुदावन खुदा, हमारी हर एक खाने पीने की अशिया पर अपनी बरकत को उंडेल है खुदावन खुदा, क्योंकि खुदावन खुदा जब कोई चीज है खुदावन खुदा तेरे हाथ में आ जाती है और तू उसे बढ़ा देता है रुए पा खुदा। अब खुदावन खुदा हम जानते हैं खुदावन खुदा कि तू हमारे घाटों को पूरा करेगा, तू हमारी कमियों को पूरा करेगा, तू हमारे रुके काम करेगा खुदा। हम ये जानते हैं क्योंकि हम खुदावन खुदा तेरे पास आए हैं, तूने मौत पर फतह पाई है, तूने सलीब पर फतह पाई है, तूने कब्र पर फतह पाई है, और आज भी इस दुनिया में तेरी ही कब्र खाली है खुदावन खुदा। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तू खुदावन खुदा शुरू से लेके खुदावन का इख्तिताम तक हमारे साथ रहा। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरे खुले आसमान के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरे बंदा के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, जिसे तूने बड़े जलाल के साथ, कुदरत के साथ इस्तेमाल किया है। हम दिल से तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और तेरे नाम को, यीशु नाम को इज्जत और जलाल देते हैं। यकीनन आज रात, आज शाम हमने जो कुछ मांगा है बड़े ईमान के साथ पा लिया है। आमीन। हालेलुया। सो मैं मीटिंग का अगला हिस्सा खुदा के खादिम के हाथ में हैंड ओवर करता हूँ। यकीनन चंद दुआएं हैं, शुक्रगुजारियाँ हैं और कुछ नवात हैं, वो हमारे इन सारी चीज़ों के बारे में आगाह करेंगे और सुबह की इबादत का भी अनाउंस करेंगे। सो मैं आपकी ज़ोरदार तालियों में खुदा के खादिम को एक मरतबा फिर दावत है। खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत नाम में एक बार फिर आपकी सलामती हो। हालेलुया, हालेलुया। जरा जोरदार तालियां बजाएं ताकि आपकी सुस्ती दूर हो। खुदावंद यीशु मसीह आपको बरकत दे। यकीनन वक्त ज्यादा हो चुका है, 12:15 हो गया है। सो सुबह की इबादत जो है वो चर्च में होगी, जो हमारी नॉर्मल इबादत होती है, और सदारत जो है वो भाई यूसुफ गौरी करेंगे और कलाम की खिदमत मुबशर शमशाद जो हैं वो करेंगे। आमीन, हालेलुया। और एक आपसे मशवरा भी चाहिए। मुझे कहा गया है जी बहनों का जुलूस निकालना है, अगर वो अभी खाने के बाद निकाल लें या सुबह निकाल लें। हाँ जी, जिनका ख्याल है कि अभी निकालना चाहिए वो जरा हाथ उठाएं। जिनका ख्याल है सुबह निकालना चाहिए वो हाथ उठाएं। हाथ तो दोनों वक्त वाले ही कम है, मुझे लगता है किसी का इरादा नहीं है निकालने का है। चले, खुदावंद आपको बरकत दे, वो हम फिर बाद में डिसाइड कर लेंगे। सो मैं तमाम दूरों नजदीक से आए हुए
عزیز بہنوں اور بھائیوں کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور خداوند کی حضوری میں آئے. ہم سب نے مل کر خداوند یسوع مسیح کی جشن فتح کو منایا. ایک بار پھر یونیورسل گاسپل اسمبلی آف پاکستان کے چیئرمین پاسٹر حزقیل یعقوب، پاسٹر حبرون کھوکھر اور پاسٹر ساجد اور ہم سب کی فیملیوں کی طرف سے آپ کو بہت بہت ایسٹر کی ڈھیروں خوشیاں مبارک ہوں. آمین، ہاللیلویا. سو میں شکر گزار ہوں ہال انچارج بھائی نریش کا اور ان کی ساری ٹیم کا اور تمام اہل محلہ کا، محلہ امن کمیٹی کا اور ان کے تمام ممبران کا اور تمام دیگر دوستوں کا جنہوں نے ہم سے تعاون کیا. میں دل سے ان کا شکر گزار ہوں. اور تمام کلیسیا کا بھی جنہوں نے کام کر کے چرچ میں خدمت کی، روپے پیسے سے انہوں نے خدمت کی. میں ان سب کے لیے بھی تہ دل سے شکر گزار ہوں. میں کوائر کا اور ساز بجانے والے بیٹے دائم کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے انتھک محنت کی اور تمام عبادتوں کو کامیاب بنایا. میں کوائر کا اور سازندوں کا بھی تہ دل سے شکر گزار ہوں. میں اپنی تمام چرچ کمیٹی کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. یوسف گوری کا، بھائی شمشاد کا، ایلڈر بزرگ انور کا اور ڈیکن انور کا، اپنے ڈیکنس پروین کا اور تمام بہنوں بھائیوں کا اور بالخصوص پاسٹر رافل کا میں دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں جو ہمارے درمیان آئے اور ہم سب نے مل کر خداوند کے نام کو عزت جلال اور بزرگی دی. آمین. میں شکر گزار ہوں پاکستان رینجر کا اور پاکستان پولیس کا جنہوں نے ہمیشہ کی طرح آج بھی ان عبادتوں میں بھی ہمارے ساتھ برابر تعاون رکھا. میں ان کے لیے بھی شکر گزار ہوں. میں اعلیٰ عدلیہ کا اور صدر وزیر اعظم کا اور تمام سینیٹرز اور تمام پاک فوج، پاک رینجر، پاک پولیس کا، پاک نیوی کا، بری بحری فوج کا بھی تہ دل سے شکر گزار ہوں جنہوں نے یہ ممکن کیا کہ ہم بڑے اطمینان سے اور امن و سلامتی کے ساتھ ان عبادتوں کو کرنے والے ہوئے. آمین، ہاللیلویا. اور آخر میں ان بیماروں کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے درخواستیں کی ہیں اور ان سب کے لیے بھی جو یہاں موجود ہیں ان کے لیے بھی دعا مانگوں گا. اگر کوئی شکر گزاری یا ریکویسٹ رہ گئی ہے تو مجھے بتا دیں. اور ہاں، مجھے یاد آ گیا، میں بھائی شمشاد کا اور بہن لبنہ کا نہایت ہی شکر گزار ہوں جنہوں نے ہاروں سے خدا کے خادموں کو ویلکم کیا. خداوند اپنے لوگوں کو برکت دے. کلام میں لکھا ہے خدا کے خادم دو چند عزت کے لائق سمجھے جائیں. آمین، ہاللیلویا. یہ میری عزت نہیں، خادموں کی عزت نہیں، بلکہ ہمارے یسوع کی عزت ہے. آئیں اس کے لیے زوردار تالیاں ہو جائیں. میری درخواست ہے بھائی لازر سے اور محلہ امن کمیٹی کے چیئرمین بھائی سے کہ کھانے کا انتظام آپ نے سنبھالنا ہے. کھانا باہر رکھا ہوا ہے اور کلیسیا یہیں بیٹھی رہے گی، کھانا آپ تک پہنچ جائے گا. آمین، ہاللیلویا. آئیں آخری دعا کے لیے اپنے سر جھکائیں، اپنی آنکھیں بند کریں. بھائی اشرف اگر میری آواز سن رہے ہیں تو
खुदावंद आपको बरकत दे। खाने का इंतजाम आपने संभालना है। आए अपनी आंखें बंद करें, सर झुकाएं और दुआ मांगें। तू जो था, जो है और जो आने वाला है, खुदा ताला के जिंदा बर्रे, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तू किताबे मुकद्दस के मुताबिक मुआ, दफन हुआ और तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठा। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तूने अपने साथ हमें भी जिंदा किया और हमें खुदावन तू लेने के लिए आने वाला है, ताकि अब्दुल आबाद तेरे साथ तेरे आसमान पर नए यरूशलेम में तेरे साथ बादशाही करें। खुदावंद हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तूने गुजरे सारे वक्त में, गुजरी तमाम इबादतों में हमारी मदद, हमारी रहनुमाई की। शैतान के सर को कुचला, उसकी सारी कुदरत पर गालिब आया और हमें फतह और कामयाबी और कामरानी बख्शी। हमारे दिल तेरे हजूर शुक्रगुजारी से भरे हैं। मैं शुक्रगुजार हूं अपने भाई शाहिद के लिए, जिन्होंने खुदा तेरी खिदमत की और खुदावंद सारी बातों की कवरेज अपने कैमरे के जरिया से की। खुदावंद अपने बेटे को बड़ी बरकत दे और अपने जलाल के लिए सदा इस्तेमाल कर। खुदावंद मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ दूर और नजदीक से आई हुई तमाम जिंदगियों के लिए, कलीसिया के लिए, बहनों के लिए, भाइयों के लिए, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए, बेटों के लिए, बेटियों के लिए। खुदावंद तेरा शफकत भरा हाथ, तेरा प्यार भरा हाथ, तेरा मोहब्बत भरा हाथ, तेरा शाफी हाथ सदा इन पर रहे और ये इसी तरह तेरे नाम को जलाल देते रहें। खुदावंद खुदा मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, आज के खाने के लिए तेरी बरकत मांग लेता हूँ। जिस तरह रोटियों और मछलियों पर तूने बरकत दी और खुदावंद खुदा सब ने खाया और सेर हुए और 12 टोकरे खुदावंद टुकड़ों के बचे। खुदा वही बरकत आज इस खाने पर आए और तेरे लोग खाकर सेर और आसूदा हों और तेरी शुक्रगुजारी, तेरी तारीफ करें। खुदावंद खुदा मैं बाकी मांदा सारे वक्त को तेरे हाथों में सौंपता हूँ और तमाम बीमारों को तेरी पाक हज़ूरी में याद करता हूँ। खुदावंद अपने बेटे यीशु मसीह के नाम में जो सबका खालिक और मालिक है, खुदावंद यीशु के नाम में तमाम बीमारियों को दूर कर, तमाम रोगों को दूर कर, तमाम परेशानियों मुसीबतों को दूर कर और अपने लोगों को आजाद कर और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। आज की सारी बरकत के लिए, आज की सारी इबादत के लिए, आज की सारी प्रस्तिश के लिए हम दिल से तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तमाम हिस्सा लेने वाली जिंदगियों को बरकत दे और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। यीशु मसीह के कादिर और जलाली नाम में आमीन। खुदा की सितारे की दुआ हम सब मिलकर कहेंगे। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को माफ किया है, तू हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्यों जो बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा से हमेशा तक तेरे हैं। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शराकत कुल ईमानदारों के साथ, आलमगीर कलीसिया के साथ, हमारे मुल्क पाकिस्तान के साथ, इस इलाका मोहल्ला और इस कम्युनिटी हॉल पर, तेरे बंदा भाई नरेश पर और उनकी तमाम काबीना पर और दूरों नजदीक से आई हुई
तमाम जिंदगियों पर अब से अब्दुल्लाबाद होती रहे। आमीन। खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूहुल कुद्स के नाम में आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक बार फिर आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईस्टर मुबारक हो। आमीन। अपनी जगहों पर तशरीफ